بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ دونوں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل والوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، اور وجہ اس کی بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ 63A کا پابند کر دیا جائے، فلور کراسنگ نہ کر سکیں ان کے ارکان جو ہیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی وہ انہیں مل جائیں۔ لیکن اب مسئلہ ایک اور پیدا ہو گیا۔ ایک تو سیٹوں والی بات ہے کہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی، وہ کیا قانونی قباحت ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک اور مسئلہ، جیسے یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے، اور الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ، جو بھی اس کا نام دے لیں، اسی طرح کے ثبوت جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، اور مبینہ طور پہ سنی اتحاد کونسل فارن فنڈڈ جماعت ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر اگر وقت ہوا تو جو پرنٹنگ پریس والا معاملہ ہے جناب، وہاں نون لیگ کے جو چھپوائے جا رہے تھے بیلٹ پیپر مانسہرہ سے، جو جہاں سے نواز شریف الیکشن لڑ رہے ہیں، تاکہ وہ بوگس جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ شامل کیے جا سکیں، اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ریکارڈ کی درستی کے لیے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے دور میں ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا، اور اس میں کچھ قانونی نکات تھے کہ جناب ان کا فیصلہ کیا جائے، اس پہ اپنی رائے دی جائے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزائے موت دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے اور پھر سپریم کورٹ سے، ان کی اپیلیں جو ہیں وہ اکثریت رائے کے ساتھ خارج کر دی گئی تھی، وہ کیس جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو جائے، اور ان کی جو سمجھا جائے کہ جناب تعصب کی بنیاد پہ انہیں وہ سزائے موت جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اس کو عدالتی مرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں اس کی۔ میں اس کیس کے قانونی پہلوؤں پر بات نہیں کر رہا، لیکن میں وہ جو حقائق کی بات کر رہا ہوں، وہ آج جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا، تو عدالتی معاون ہے مخدوم علی خان، جو سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہوئے ہیں، ان سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا جناب یہ جو ججز تھے انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا، یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی تھی تو کیا انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا رکھا تھا؟ پی سی او یعنی کہ میں وفادار رہوں گا، جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ضیاء الحق، ان کی وفاداری کا حلف اٹھانا ہوتا ہے نا، تو کیا انہوں نے حلف اٹھا رکھا تھا؟ تو مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جناب جی اٹھا رکھا تھا۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت کا حکم لاہور ہائی کورٹ سے سنایا گیا اور سپریم کورٹ سے سنایا گیا، اس وقت تک پی سی او نہیں آیا تھا۔ ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے، اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے تحت جو ہے وہ انتظامیہ کام کر رہی ہے، چیف ایگزیکٹو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے ملک کا، لیکن پی سی او نہیں آیا تھا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اور پھر جو انہیں سہارا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 4 اپریل 1979 کو وہ جو سزائے موت سنائی گئی تھی اس پر عمل درآمد ہو گیا، اور جو پی سی او ہے وہ اس کے بعد آیا ہے، کافی عرصہ بعد آیا ہے، اور وہ آیا تھا 24 مارچ 1981 کو۔ اس وقت شیخ انوار الحق چیف جسٹس پاکستان تھے۔ یہ وہی شیخ انوار الحق صاحب ہیں جنہوں نے جو ذوالفقار علی بھٹو کی اپیلیں تھیں ان کی سماعت کرنے والے بینچ کے یہ سربراہ تھے، اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ وہ 24 مارچ 1981 کو پی سی او آتا ہے، جس کے تحت انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اس آرڈر کے تحت حلف اٹھائیں۔ تو وہاں وہ میٹنگ شیٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کا احوال اگر بیان کروں تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو شیخ انوار الحق صاحب بھی حلف اٹھانے کے لیے تیار تھے، اور مولوی مشتاق صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزائے موت دینے والے بینچ کی سربراہی کی تھی، وہ اس وقت سپریم کورٹ جا چکے ہوئے تھے۔ تو وہاں یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ حلف اٹھانے کے لیے تیار تھے، اور شیخ انوار الحق صاحب سے یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے، جناب تسی کی کرنا حلف اٹھا کے چیف جج رہ کے، تسی اس طرح کرو، عالمی عدالت انصاف دے وچ جج دا ایک جڑا نا الیکشن ہو رہا، تسی اتھے جاؤ عالمی عدالت انصاف اسی تانوں سپورٹ کریں گے۔ اور یہ 24 مارچ کو 1981 کو یہ پی سی او آتا ہے، اور 25 مارچ کو وہ
रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो पीसीओ के तहत उनसे हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं होती। और इसी तरह जो मौलवी मुश्ताक साहब हैं, उनसे भी हल्फ नहीं लिया गया था पीसीओ के तहत। फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी जज थे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त, वो सबसे जूनियर जज थे। सबसे पहले उन्होंने इनकार किया था कि जनाब मैंने नहीं उठाना हल्फ। ये साहबान जो हैं, ये दोनों तैयार थे हल्फ उठाने के लिए, लेकिन इनसे हल्फ लिया नहीं गया था। ये फारग हो गए थे पीसीओ के तहत। जो इन्होंने कुर्बानी दी थी इंसाफ की, ज़िया को खुश करने के लिए मुबैना तौर पे। अब ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो देख रही है रेफरेंस के क्या आगे जाके नतीजा निकलता है। वो रायगां गई, इनकी नौकरियां नहीं बच सकी थी। ये बहरहाल ये बताना था कि वो शायद गलत हल्फ तो उठाया था, लेकिन जिस वक्त ये सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी अपील खारिज हुई थी, उस वक्त तक पीसीओ के तहत जजों से हल्फ नहीं लिया गया था। अब पता जनाब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो पीटीआई ने इत्तेहाद कर लिया है, और जो पीटीआई के अरकान हैं कौमी असम्बली के नौ मुंतखब और सूबाई असम्बलियों के, उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और फिर उन्होंने 19 तारीख को कोई 50 के करीब जो लोग हैं कौमी असम्बली के, उनके बयान नल्फी जमा करवाए इलेक्शन कमीशन में कि जनाब हमारे लिए खसूसी नशिस्तों का जो है, मखसूस नशिस्तें जो हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। और 30 के करीब जो नए मज़ीद एक लिस्ट जो है वो गई है, क्योंकि आइन के तहत यह है कि जब नोटिफिकेशन गज़र नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किसी न किसी जमात में शामिल होना होता है, ताकि मखसूस नशिस्तों का जो है तयन किया जा सके। तो वो 16 तारीख को 50 के करीब जो लोगों का नोटिफिकेशन हुआ था वो पहले शामिल हुए, और फिर बाद में 30 लोग मज़ीद शामिल हुए, और कुछ लोग 82 कह रहे हैं। बहरहाल वो 80 या 82 लोग जो हैं, उनका नाम जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के तौर पे, अरकान असम्बली के तौर पे इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया, और मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब हमें आप मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अलाट करें। अब उसमें मसला ये है, वो पहले भी इस पर मैं कई दफ़ा बात कर रहा हूँ, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका जो सेक्शन 104 है, वो कहता है कि एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं और उनकी लिस्ट देनी होती है तरजीहात समेत, कि पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे, तीसरे पे कौन, चौथे पे, पाँचवें में कौन। वो है 104। अब ये पता ये चला है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जिन्होंने फैसलाबाद से एक सीट जीती है कौमी असम्बली की, और उन्होंने राजा रियाज के बेटे को वहाँ हराया है, और पीटीआई वालों की बहरहाल उनको सपोर्ट जो है वो हासिल थी। तो उन्होंने ये एतराफ़ किया है मीडिया के सामने कि जनाब हमारी तरफ से मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट जो है वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जमा नहीं करवाई गई थी इलेक्शन कमीशन में। अब अगर उस मुद्दत के अंदर जमा नहीं करवाई गई थी तो फिर उस बंदे का जो राइट है उस जमात का कि मखसूस नशिस्तों में से उसे हिस्सा लिया जाए, वो ख़त्म हो जाता है। अब इनके वकला जो हैं, वो जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है, उसका सब आर्टिकल है, सब सेक्शन है 4, उसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जब हमें सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। 104 का सब आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो लिस्ट जमा करवाई गई थी मखसूस नशिस्तों के लिए, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, यानी कि उसके ऊपर जितने लोगों के नाम थे वो तमाम सीटें फिल हो जाएं, या फिर नशिस्तें वो खाली हो जाएं किसी वजह से, रिज़ाइन की वजह से या किसी के इंतकाल की वजह से, तो फिर और वहाँ नाम उस लिस्ट में मौजूद ना हो, तो फिर एक नई लिस्ट जो है अजाफी नाम जो हैं वो, या नए नाम, मज़ीद नाम, नए भी नहीं कहेंगे, मज़ीद नाम जो हैं वो दिए जा सकते हैं। अब मसला यह कि इन्होंने लिस्ट ही नहीं दी, इन्होंने अपना राइट खो दिया है। अब वो जो सेक्शन 4 है, सब 104 का सब सेक्शन 4, वो उस सूरत में काम करता है, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं, जब पहले वाली शर्त पूरी हो चुकी हो, कि पहले लिस्ट जमा हो चुकी हो। इन्होंने तो जमा ही नहीं करवाई। बहरहाल इस पर रौला ज़रूर पड़ेगा और ये मामला अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी ज़ाहिर है पहले फड्डा पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट्स में जाएगा। और मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का मूड है ना, मुझे ये लग रहा है कि वो इसी नौयत का है कि जनाब वो 104 के तहत आपने तो जमा ही नहीं करवाई लिस्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, तो फिर काहे की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें, वो इजाफा तो आप उस वक्त कर सकते हैं
कि जब पहले वाली लिस्ट में नाम जो है वो दिए फिल हो जाएं, पूरे हो जाएं, फिर दे सकते हैं। तो फिर बहरहाल ये जाएंगे, अदालतों में लगे हुए हैं, ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं। और दूसरी जो इनसे गलती हो गई है वो ये हो गई है कि जनाब इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो इत्तेहाद किया है और अपने तमाम अरकान जो हैं वो वहाँ इन्होंने शामिल करवा दिए हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में भी वहीला तौर पे ये पता चला है कि जनाब ये फॉरेन फंडेड जमात है, पॉलिटिकल जमात। और इस बात का जो सबूत है ना वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में मौजूद है। और अमेरिका की एक सरकारी वेबसाइट है, हुकूमत की वेबसाइट है, जहाँ ये ग्रांट जिनको दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उसमें जो इनको ग्रांट देने का जो रिकॉर्ड है उस वेबसाइट पे वो मौजूद है। 2009 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अमेरिकी हुकूमत से $36,607 जो हैं ये वसूल किए। ये वसूल कैसे किए, इसकी तफसीलात जो हैं ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 12 जनवरी 2012 को शाये हुई। और जो एक आलमी नशरियाती कह लें आप, एक आलमी खबरसां अदारा है एसोसिएटेड प्रेस, उसकी भी ये खबर है। यानी कि ये आलमी खबर है, सिर्फ पाकिस्तान में शाये होने वाली खबर नहीं, ये पूरी दुनिया में शाये होने वाली खबर है कि जनाब ये जो साहबान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, उस वक्त साहबजादा फजल करीम साहब इसके सरबराह थे। और वो वेबसाइट का तो मैंने आपको बता दिया कि वो आपको दिखा भी देते हैं कि वो वेबसाइट पे जो इस ये खबर के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि $36,607 जिन्होंने वसूल किए। अब होता क्या है, जब वो खबर वो आ जाती है वेबसाइट पे, खबर आ जाती है, तो फिर उनके तर्जमान से लोग सवाल करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के। और वो खातून जो हैं वो उस वक्त तर्जमान थी लोरा डी लॉकस, उनसे साहबी पूछते हैं कि बीबी आप लोगों ने, हुकूमत आपकी जो है, इसने मजहबी जमातों को पैसे क्यों दे दिए। उसने ये कहा कि जनाब स्टेट डिपार्टमेंट से जो राब्ता किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, और उन्होंने कहा कि जनाब हमने तालिबान के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ एक रैली निकालनी है 14 अगस्त 2009 को, और फ्लैग मार्च हमने करना है। उसके लिए हमें ग्रांट दी जाए, कोई माल लगाया जाए, पैसा लगाया जाए। साढ़े कोल तो पैसे ही नहीं है, तुसी पैसे दोगे तो फिर असी जनाब वो रैली निकाल देंगे। उस वक्त एक प्रोग्राम शुरू किया था अमेरिका ने, डिप्लोमेसी प्रोग्राम था बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो उसके तहत ये राय अम्मा अपने हक में हमवार करने के लिए और तालिबान के ख़िलाफ़ लोगों का जहन बनाने के लिए, जहन साजी के लिए ये इस तरह की हरकतें जो हैं वो किया करते थे। आपको याद होगा कि उन दिनों एक लाहौर में जो अमेरिका के कौंसल जनरल थे ब्राइट डी हंट, वो गोरा शलवार कमीज पहन के बट्टों की तरह, ब्राइट बट भी उसको कहते थे, वो बड़ा एक्टिव था, मजहबी जमातों के साथ बड़े राब्ते शाब्ते ये वो बड़ी वो करता था। और मेरे ख्याल वो अपने टेन्योर से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजार के गए हैं। तो वो साहब भी यहाँ बड़े मुतहर्रिक थे। तो उन्होंने ये कहा, जो लोरा डी लॉकस हैं तर्जमान, उन्होंने ये बताया कि ना ये मजहबी जमातों को हम, जो उनके गैर मजहबी प्रोग्राम होते हैं ना, सरगर्मियाँ होती हैं, उसके लिए फ़ंड देने का हमने प्रोग्राम बनाया था, उसके लिए फ़ंड दिया जा सकता है। उसके लिए हमने फ़ंड दिया था इनको कि ये अफ़गानिस्तान वाले मामले पे जो है वो हमारी मदद करेंगे और पाकिस्तान में रैलियाँ शैलियाँ निकालेंगी। वो ये कहती हैं कि जनाब इन्होंने वो रैली क्या निकालनी थी, हमारे साथ तो हाथ हो गया, वो फायर बैक हो गया। हमारा जो प्लान था वो हुआ ये कि ये सलेमान तसीर साहब जो हैं गवर्नर पंजाब, मुमताज़ कादरी के हाथों वो मारे जाते हैं। तो ये जो फजल करीम साहब की जमात थी ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये उनके हक में मुजाहरे शुरू कर दिए इन्होंने। तो वो फिर उन्होंने जब पूछा गया फजल करीम साहब से खबर के मुताबिक, तो उन्होंने कहा जनाब हम इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मुमताज़ कादरी साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो ठीक किया है। इस तरह के इन्होंने, और फिर इनकी जो ग्रांट वाला जो मामला था वो मुनक़ता हो गया, आगे से उन्होंने बंद कर दी। और उन दिनों में जो हमारे वहाँ सफ़ीर थे, ये मामला जब सामने आया तो उसके बाद हमारे सफ़ीर थे हुसैन हक्कानी साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। तो उनसे मिलता है एक और ग्रुप, ये जो हमारे सुन्नी भाई हैं, इनकी जो तंजीमें हैं, उनके हाजी हनीफ तैयब साहब मिलते हैं और शाह तराबुल हक साहब,
وہ जाके हुसैन हक्कानी साहब से मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि जनाब ये जो पैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देते थे वो तो जनाब अब गड़बड़ हो गई है, तो अमेरिका से कहें कि वो पैसे जो हैं वो हमें दिया करें, हम मुजाहरा करते हैं, हमें पैसे दें, हमें माल लगाएं। तो वो कहते हैं जनाब मेरा तो इस हवाले से मैं कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बहरहाल जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पैसे दिए थे स्टेट डिपार्टमेंट ने, तो उनसे मैं आपकी बात करवा देता हूँ। अब मुझे नहीं पता आगे फिर इन्होंने लेने शुरू किए या नहीं लेने शुरू किए, बहरहाल यहाँ तक की जो खबर है ये मैं बता रहा हूँ। और इसकी तस्दीक के लिए हाँ फिर एक और बात, ये जो साहब गए थे ना हाजी हनीफ तैयब साहब और इनके साथ शाह तरावल हक साहब, तो इन्होंने उनसे कहा, उन्होंने पूछा हुसैन हक्कानी साहब ने कि भाई जी ये आप को कैसे पता है कि वो ग्रांट लेते थे और ग्रांट बंद हो गई? नहीं, तो ग्रांट लेने वाली बात को तो बंद होने का पता है, मसला ये है कि वो चले गए हैं जनाब ईरान बलाक में, ईरान का वो दौरा करवा दिया उनको राजा नासिर अब्बास साहब ने। इधर से अमेरिका ने बंद की, तो ये जो फजल करीम साहब और राजा नासिर अब्बास साहब ये अब ईरान का दौरा कर रहे हुए हैं। तो वहाँ फिर ये बात भी सामने आई कि अब फिर ईरान इनको फंडिंग शंडिंग कर रहा था। अब भी जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो राजा अब्बास नासिर को साथ साथ रख रहे हैं। इसका मतलब इनका जो तल्लक है वो बड़ा पुराना है। अमेरिका वाला मामला जो मैंने अर्ज़ किया है और फिर ईरान जाना, और अब भी राजा नासिर अब्बास, वो कह रहे हैं हमारे 2007 से ये इत्तेहादी चले आ रहे हैं राजा नासिर अब्बास साहब, हालांकि दोनों मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग हैं, फजल करीम साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, और फिर हामिद रज़ा साहब जो अब सुन्नी फजल करीम साहब के साहबजादे हैं, वो अब सुन्नी को इसको चला रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद को। तो ये सारा मामला है और इसकी तस्दीक के लिए ये साथ ही अबू ज़मीन बैठे हुए हैं हुसैन हक्कानी साहब, उनसे पूछ लिया जाए। और फिर जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, जो हमारा कानून है ना, जो हमारा आइन है, पहले तो जो आइन का आर्टिकल 17 के सियासी जमातें बन सकती हैं आज़ादी, लेकिन वो कानून के ताबे उन्हें काम करना होगा, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते। और फिर एक कानून है, जो कानून ये कहता है वो आपको पता ही है, जो पीटीआई पे लागू हुआ, इन्होंने तो उसको फॉरेन फंडिंग को ममनुआ फंडिंग में बदल दिया ना। वो ये है कि गैर मुल्कियों से कोई सियासी जमात फंड नहीं ले सकती, कोई मदद नहीं ली जा सकती, माली इयानत नहीं ली जा सकती, और किसी दूसरे मुल्क से भी नहीं ली जा सकती। या फिर ये जो मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं, बिजनेस करने वाली फर्में होती हैं, तजारती कंपनियां होती हैं, उनसे भी कोई सियासी जमात जो फंड नहीं ले सकती, क्योंकि इस बात का फिर खदशा मौजूद रहता है कि जो सियासी जमात है फिर जिनसे वो पैसे लिए होते हैं उन्होंने कहानी हो जाती हैं, उन्होंने तो फिर वो उन्होंने फायदे देंदे ने, उन्होंने हक च पॉलिसियां बनाते हैं, ये मना वा ये नहीं लीतियाँ जा सकती हैं। तो बहरहाल अब ये तो रिकॉर्ड में आ गई हुई है, उनके तर्जमान इसकी तस्दीक कर चुके हैं, वेबसाइट पे मौजूद है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जनाब 36,607 डॉलर 2009 में अता किए गए अमेरिका की तरफ से। अब देखें आगे जाके कोई इसको करता है चैलेंज, नहीं करता, आगे बात कैसे बढ़ती है कैसे नहीं बढ़ती। और वो बीच में रहेगी बात जो मैं बात करना चाह रहा था, उस पर जो बैलेट पेपर जाली छापने वाला मामला था। बहरहाल वो सबको ये पता है कि जनाब जो बैलेट पेपर थे वो हरे रंग के थे, जो कौमी असम्बली के थे, और मियाँ साहब मानसारा से जहाँ कौमी असम्बली का ही इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये जो राय साकिब साहब हैं खर साहब, जिनके हवाले से ये खबर बाहर निकली, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर नहीं उन्होंने खबर चलाई, क्योंकि मैंने देखा है कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते उन पर, लेकिन बहरहाल वो अपनी वीडियो डालते हैं। तो ये तो इससे तो बड़ा उठ से आना था इस मामले ने, उन्होंने, इसका मतलब उनके दिल में कुछ चोर था, दाल में कुछ काला था, तो उन्होंने नहीं चले। और दूसरा ये कि वहाँ जब अगर कोई हल्का खुलता है, वो सारी मिसालें हैं उसकी। ये 2013 में तो बहुत सारे लोग जो थे, वो थंब इम्प्रेशन जो था, वो जो अंगूठे हैं जो काउंटर फॉल पे लगाए जाते हैं, वो मैच नहीं कर पा रहे थे नादरा के रिकॉर्ड से, तो कई बंदे जो हैं वो उन्होंने उड़ा दिए थे। और जो कासिम सूरी साहब हैं, उनका भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया था, इसी बुनियाद पे किया था कि जनाब आपके जो अंगूठे हैं आपके वोटरों के, वो तो मैच ही नहीं करते। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके उन्होंने अपना टेन्योर जो है वो पूरा किया था। तो एक तो ये कि सफ़ेद बैलेट पेपर जो हैं इनकी कोई अहमियत ही नहीं थी, और दूसरा ये कि अगर वो खुलते हैं तो वो जो काउंटर फॉल्स हैं वो भी मौजूद होने चाहिए, फिर ही वो टैली करते हैं ना अंगूठे चंगूठे जो भी मामला होते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जब वो उसको काउंटर फॉल से अलग करते हैं बैलेट पेपर को, तो वो दंदानेदार हो जाता है, क्योंकि वो सिलाई लगी होती है, वो
फाड़ना आसान होता है, तो वो दंदानेदार बन जाता है। ये जो दिखा रहे थे, ये वो बिल्कुल चारों तरफ से कटा हुआ बराबर। और दूसरी बात ये है कि जो नए आरओ आए हैं, वहाँ तो हुकूमत बन रही है मानसरा में पीटीआई की, और कौन अफसर होगा जो इतना रिस्क लेगा कि जो आने वाली हुकूमत है उसके बरखिलाफ जाए और जनाब वो नए सिरे से थैले खोल ले और फिर दोबारा वहाँ जो डाल के बैलेट पेपर जो हैं ये वहाँ सीलें लगाए, मोहरें लगाए, और फिर दोबारा जब हल्का खुले तो फिर जनाब सारा रिकॉर्ड ही बदला हो। एक तो ये कुछ जो सफ़ेद रंग के वो बैलेट पेपर्स की अहमियत कोई नहीं, दंदाने कोई नहीं, काउंटर फाउल कोई नहीं, और फिर वैसे दूसरी भी वहाँ कुल वोट जो है ना वो है 6,45,049, और वहाँ कास्ट हुए हैं मानसरा में जो नवाज शरीफ वाली सीट पे 2,38,000। 4 लाख तो वैसे ही वहाँ उनके पास पड़े हुए, उन पे मोहरें लगा लेते हैं, जहाँ छुपवाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी पता ये चला है कि ये कोई एजाज साहब हैं पीटीआई के, उनकी ये है प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ छापे जा रहे थे। पता ये है कि माल शाल के लिए लोग कर लेते हैं, मुझे नहीं पता, वो हम आपको एक दिखा देते हैं कि जनाब इनकी जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक तंजीम है, उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है, और इनके ग्रुपों से ये निकाल के मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। वो कह रहे हैं जनाब कोई हमें इतला दें इस तरह की, वो मामला खुफिया रखा जाएगा, और फिर जनाब हम जो है उसको 1,000 से $10,000 तक इनाम दिया जाएगा। बहरहाल ये मामला तो मशकूक हो गया, खुल गया है, लेकिन अब तहकीक करने वाली बात यह है कि वो पता करें वहाँ से कोई $10,000 पाकिस्तान में आए तो नहीं। उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं बताएंगे उस बंदे का जिसने ये हमें जो सबूत फराहम करेगा। और फिर ये सोशल मीडिया पे कैसे चलेगा, वो उन्होंने तो अपनी यूट्यूब पे डाला ही नहीं मामला, फिर ये पीटीआई वाले सोशल मीडिया पे कैसे चलेगा मामला। आप ये मुतालबा कर रहे हैं जनाब वो रिज़ाइन करें, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। तो भाई इस तरह की हरकतें करके आप कैसे रिज़ाइन का मुतालबा कर सकते हैं? 2 नंबरियाँ आप कर रहे हैं। अब ये भी क्या पता कि ये 2 नंबरी जो है ये नवाज शरीफ के मुखालिफ उम्मीदवार कर रहे हों, ताकि ये बैलेट पेपर वहाँ डाल दिए जाएं और मोहरें लगी हों उस पर नवाज शरीफ के शेर के ऊपर, और वहाँ कहें देखें जनाब ये देखें जाली बैलेट पेपर पड़े हुए हैं। ये भी तो हो सकता है ना, दूसरा पहलू भी देखें ना, ये भी तो हो सकता है ना। और इल्ज़ाम आए उनके ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन कहने 2 नंबरी कर रही ना, चीफ इलेक्शन कमीशन 2 नंबरी तुसी कर रहे हो, फड़े भी जानते हो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।